Good evening, ma'am. Good evening, everybody. My dear Varsha and all of judges, Sanjivini also there, all parents and dear student. I'm very happy to you call me here for rhythmic gymnastics competition. जिम्नास्टिक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने का जो आप लोगों के दिमाग में आया, इस सोच के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. It is a great honor for Premier Rhythmic Gymnastics Academy that ma'am has accepted the invitation and she is here today with us. So, Sanjitai, as a senior most coach, can you please do the honors? I am very excited to introduce my senior friend and the great gymnastics coach in India, Madam Minara Begum. Madam Minara was coaching in a small town of Calcutta. When Pranati came to her, she was just 5. Madam Minara taught her everything in gymnastics, basic gymnastics, advanced gymnastics skills, and also how to wear costume and how to appear for the competition and how to go for the state competitions, how to bear that pressure of the competition, everything she taught Pranati, and she brought her till sub-junior national championships. Due to Madam Minara, Pranati got admitted in Excellency Scheme of Sports Authority of India. And from there ahead, she got a big platform. Then she went to national camps, then for Asian Championships, then a medal in the world event, a bronze medal at Asian Championships 2019. And you know the history. Now she's selected for Tokyo. But for a coach, it's a great thing. See, madam has not done this thing only for practice. She has done this thing for many girls in West Bengal. She has produced many national medalists, many international players also from West Bengal. So for a coach, it's not that a child very talented go for international. So that is the only thing. Coach gives attention to all children equally, and she has upbringing many good gymnasts. In West Bengal team, always there are 2-3 gymnasts of Madam Minara. So it's a great thing. She was Sports Authority of India's professional coach. 2 years ago, she retired. Before that, for more than 35 years, she was a coach. She was a professional gymnastics coach. We saw her in all national championships wherever we go. She was either a judge or a coach. She started her career in 1982 Delhi Asian Games. She was technical official over there. She was international judge also. She was a good coach also. Since 2014, she's always with India team. Most of her time after 2014 was at Delhi, IG Stadium, because all the time one or the other national camp used to be there and madam used to be there for the as a coach. So she was Indian gymnasts coach, Indian team coach for Asian Championships, for Asian Games 2014, for World Championship, for World Cup. So this was a great career. In women artistic gymnastics, there are very few women coaches. Most of the coaches are men because you need a very strong will to stand in the middle of the uneven bar, stand on a foam platform and help a child flying from a higher bar to a lower bar. Holding a child when she's flying from a higher bar to lower bar. It's a great thing. Many of the coaches ask spotters, ask young gymnasts to help, but madam never do like that. Madam herself stands on the foam box and help children. Many new elements which her gymnast did first time in India. Madam has been awarded as a Krida Guru Award in West Bengal by West Bengal state government. As we have a Chhatrapati Award in Maharashtra, it's the same award over there. So she was conferred with that award long back because so many years she was producing national champion girls. And of course, from Chandigarh government, also she has got the same sports award because as a collegiate girl, she has her study in Chandigarh University. And after that, she started her coaching career in Chandigarh. There also she produced very good results and she got the
Best Sports Award in Chandigarh also. So this was her amazing, great career. Will like to share my experience. We were sharing a room at Bangkok Asian Championships 2017. I saw she was always there for the girls. She used to get early and call girls, उठ गए कि नहीं, तैयार हो गए कि नहीं time पे. After evening also, after coming from practice, she checked all the things with the girls. ये हुआ या नहीं हुआ, ice लगाया कि नहीं लगाया. 24/7 for the all those 7 days, she was thinking about the girls only. She was engrossed in them. So she was very passionate lady, very passionate coach. Hats off to you, man. Thank you. Thanks. Thank you, Sanjeevani. There is a lot of time limit we have today, and we want to hear many things from you, ma'am. So actually, you had a long career, and your efforts for last 35 years are showing the results that one gymnast has selected for a Tokyo Olympic, and we all are proud of you and your gymnast. And like Sanjita said, this is like honor because one female coach has done a training with a young gymnast, and she has been selected now for the Tokyo Olympics. So after Nandi sir, really hats off to you, ma'am. And we have seen you working. So now when Sanjita is saying all these things, we know we have seen you. So I can relate all those experiences, the national championship, the tension on your face before Praniti's set. And once we finish the first day of the competition, we go back to the room and still you will keep discussing about the performance, about Praniti, and you know, आपको बोलना पड़ता था मैडम आ जाओ अभी खाना तो खा लो, because otherwise you will keep on thinking about her marks, her performance. And we have learned so many good things from you, watching you, staying with you, and it has really helped all of us. And we try to copy you in some or the other way, like when we do coaching, it is really helpful whatever you have done. And we are fortunate enough that we have seen you, we have worked with you in some competitions in artistic gymnastics. So it was a great experience. International competition also. Yes, Go to international competition also. Yes. And Pranati also there. Pranati Yes. and Mandira. This is the first time Yes. international. Yeah. Yes. Mandira has done, Pranati also there. Yes. We had a great support when we go international with you. Whatever, if we want to ask somebody, you are the most approachable person in the team. That ma'am se पूछो, आपको answer मिल जाएगा. It was like that. So thank you anyways for coming. I would ask Rashmi or Saricha to tell you about this competition in short, and then we want to hear from you, ma'am. Okay. This competition we had 5 age groups: under 8, under 10, under 12, under 16 and above 16. So the main purpose of this competition was to check their artistry side. So for rhythmic gymnastics, difficulty is also important and the artistry is also important. So when we go and see international performances, sometimes we feel that we are lacking behind because of the execution and artistry part. And these girls, I think so, they have understood because everyone has listened to their music almost 10 times a day. They understand what music and what dynamic and what choreography or theme is to be needed. So I think so this is the first step where we are telling these young kids that with difficulty, we have to work on the execution, body posture, presentation part, which Varshati has been teaching all of us for many years. So we are just taking one step ahead so that at like Pranati is playing Tokyo Olympics, we can see many more gymnasts playing Olympics ahead. So ma'am, thank you so much for coming today. It is really, really proud feeling for us because we always feel that इंडिया का कोई तो जिम्नास्ट होना चाहिए ओलंपिक्स में, and we want that Indian flag to go up. And ma'am, you and Pranati are one such examples, and we will definitely tell our students, and they all are very happy to join today.
So thank you so much. We have so many questions, ma'am. Actually, I'm sure that this 40 minutes are not going to be enough to ask you the questions regarding your training methods. But can you please tell us, like, ये बच्चों ने तो अभी शुरुआत की है जिम्नास्टिक्स के लिए. बहुत बार ऐसा होता है कि मेडल नहीं मिला उनको तो बच्चे थोड़े नाराज हो जाते हैं. पेरेंट्स का थोड़ा डाइसी हो जाता है. अभी 2-3 बार मेडल नहीं मिला तो क्या करें, जिम्नास्टिक्स कंटिन्यू करना है नहीं. तो एज अ कोच व्हाट डू यू सजेस्ट, और आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि कैसे होना चाहिए प्रैक्टिस में? हारना भी सीखना चाहिए, तब जीतने का मजा है. पहले ही हम जीत लेंगे तो हारेंगे जिस दिन ना, तो हम कुछ कहीं पे नहीं रहेंगे. तो ये बात नहीं है कि 3 ही मेडल मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होना है. इसके बाद जो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए भी उसको प्रिपरेशन है, उसको तैयारी है, उसको होना चाहिए कि हमको नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइम पे नहीं मिला तो और भी मेहनत करो. मेरे को उसके अंदर जिद होना चाहिए कि हम ये जिद में कि मेरे को करना है और नेक्स्ट टाइम मेरे को वही मेडल मेरे को अचीव करना है, ये रहना चाहिए. नहीं तो पेरेंट्स को तो बच्चे लोगों को बोलना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, अगर तुमको मिला नहीं तो नेक्स्ट ईयर तुम और भी अच्छा प्रैक्टिस करो, तुम और भी अच्छा तैयारी करो, तभी तुमको मिलेगा. एक दिनों में तो मेडल मिलता नहीं. मेरे कितने सालों की मेहनत के बाद इंटरनेशनल मेडल मिला. अभी इसके लिए हम तरसते थे, चलो दीपा को तो मिल गया, वो ओलंपिक में जा रहा है, अपने बच्चे को भी इतना बनाओ कि वो भी ओलंपिक के लिए तैयारी कर ले. भगवान ने ये दिया. एक दिनों की मेहनत में कुछ भी नहीं अचीव होता है. उसके लिए जैसे हम जब जिम्नास्ट थे उसी टाइम पे हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हम हार के अगर घर पे गया तो पेरेंट्स कहते कि कोई नहीं, मेरे पापा हमेशा कहा कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम और भी अच्छी तरह करो. तो हर एक पेरेंट्स को ऐसे होना चाहिए कि एक ही टाइम में ही हमको अचीव करना. जो आज 1 साल किया, मेरे देखो उस बच्चे को मेडल मिल गया तो इस मेरे बच्चे को नहीं मिला, छुड़ा देते हैं, चलो मत करो जिम्नास्टिक्स. नो, क्या पता ये आज हारा कल वो ओलंपिक में जा भी सकता है. आज हारने का कोई ये नहीं है. आज हारने से ये नहीं कि हाँ जिंदगी के लिए हार गया, नहीं, आज हारा कल जीतेगा. और जो हारा वो हारने के बाद इतना जीत होना चाहिए कि मैं वो नेशनल इंटरनेशनल में भी प्राइज लेके ओलंपिक के लिए भी प्रिपरेशन हो सकता है. इसीलिए बच्चों के मन में पेरेंट्स का और कोच का ड्यूटी है, तीनों साइड का होना चाहिए. कई बार सिर्फ कोच का ही पेरेंट्स का ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन जो बच्चे घर से आते हैं, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कोचेस के पास कि आज ही आए आज ही मेडल मिला उस बच्चे को मिला, ऐसे होना बिल्कुल नहीं चाहिए. उनको हम तो अगर इधर पेरेंट्स हो उनको मैं तो मतलब बोलना चाहती हूँ, मेरे को पता नहीं पेरेंट्स है क्या नहीं, हाँ है. आई थिंक है. उनके लिए मेरे ये है कि बच्चों को हमेशा उत्साहित करना चाहिए कि बेटा इस टाइम पे नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा, तुम और अच्छी तरह करो, तुमको मिलेगा ही मिलेगा. और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत. ऐसे कोच हो कि तुम जो मेहनत कर रहे हो, बच्चों को भी तो उसके साथ साथ ही मेहनत करना है. पेरेंट्स को भी बच्चों को उत्साहित करना है. ये नहीं कि मेडल मिलना ही मिलना है, नहीं तो इस कंपटीशन के बाद तुम खेलना नहीं, ये बात नहीं होना चाहिए. क्या तुम भी एक कोच हो? सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ मैडम. राइट. तो Yes. ऐसे ही होना चाहिए. जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होना चाहिए, अपने अंदर जिद होना चाहिए कि हमको पाना है. जैसे जहां से मैं यहाँ आया, जहां तक मैं पहुंचे हूँ, मेरे जीत पहुंचे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था. लेकिन मेरे जीत तो था, तभी तो आया कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकते. आज इंडिया में भी सोचते हैं कि जेंट्स कोच ही कर सकते हैं, लेडी कोच कुछ नहीं कर सकते. लेकिन इट्स प्रूव लेडी कोच भी कर सकते हैं. और हमेशा ये बात हमको सुनना पड़ता था. आज लेडी बहुत ऊपर है, अपने बच्चे लोग, अपने जजेस, अपने लेडीज सारे ऊपर है. कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं. तो करने के लिए क्या होना चाहिए? जिद. वो चीज हमेशा होना चाहिए. मैम, आपने जब भी जिम्नास्टिक्स सिखाना शुरू किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ था. मैं कुछ दिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर 6 मंथ काम किया, और जहाँ पे मेरा था कि सब लोग मेरे को पसंद करते थे. मतलब मेरा वर्क करने का ऐसे ही तरीका था शायद
कि मैं भी जिम्नास्टिक जब किया तो बहुत मेहनत से किया, वो उसको उससे प्यार था, अदरवाइज तो मेरे को छोड़ देना चाहिए था। घर के सामने क्लब था तो शुरू किया, लेकिन कब खत्म हो गया, उन लोगों ने क्लब जिम्नास्टिक्स बंद कर दिया। लेकिन तब तक हम 1-2 नेशनल भी खेल चुके थे। तो हमारे घर से खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जहाँ पे नेताजी इंडोर स्टेडियम है, उधर ही हम प्रैक्टिस के लिए आते थे। तो 1 घंटे की ट्रेन जर्नी होता था। तो कहीं भी जाओ तो इतने मतलब मेहनत करके हम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ता था, फिर भी हमने छोड़ा नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। चलो, मेहनत से तो अभी इधर तक ही आया ना। तो इसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो था चंडीगढ़ में। आज एक बात ये है कि चंडीगढ़ में मैं फर्स्ट टाइम गया और जिसका सपोर्ट मिला मेरे को, वो है मिसेस मिल्खा सिंह। उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स से मिस्टर मिल्खा सिंह की वाइफ। तो मेरे जो काम करने का तरीका देख के उनको, मेरे को बहुत उनको पसंद है। मतलब वो बोलते थे, मेरे को बेटी की तरह रखते थे और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी एपेटाइटिस के लिए बोलते गाड़ी उठाओ और लेके आओ अम्बाला से, कोई बात नहीं, गाड़ी लेके जाओ। मतलब इतना फैसिलिटी दिया। एक लेडी होके ना हमेशा मेरे को अपर रखने की कोशिश में ही थे। तो उनके घर में ऐसे, जैसे मेरे को आज सुनाई दिया कि मिस्टर मिल्खा सिंह बीमार है, बहुत बीमार है, तो मेरे को दुख हो रहा है। वो उनके घर में मेरा अच्छा, मतलब उन लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन था। तो ये तो मेरा मतलब तकदीर अच्छा था। मिस्टर मिल्खा सिंह और मिसेस मिल्खा सिंह मेरे को बहुत प्यार करते थे। तो उधर से मैं 7 साल वर्क किया, 7 इयर्स में। तो कई लोगों को पता, काफी अच्छा जिम्नास्ट बनाया, नेशनल प्राइज मिला बच्चे लोगों का, नेशनल कैंप में आया, तभी मेरे को उधर से स्टेट अवार्ड मिला था। इसके बाद हम इधर आए कैलकाटा पोस्टिंग होके, लेकिन मिस्टर मिसेस मिल्खा सिंह मेरे को पोस्टिंग के बाद भी रुकने की कोशिश किया था, लेकिन मेरा होम टाउन था, मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं वापस आऊँ, तो आ गया। इसके बाद इधर काम शुरू किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम किया। हुगली डिस्ट्रिक्ट का मैं लड़की हूँ, तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में कुछ किया। इसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल में मेरा 1 साल पोस्टिंग था, उधर भी मैंने काम किया और कोशिश किया कि इंडिया के लिए कुछ करूं, और कुछ करके तो अब तक तो किया ही है कुछ। तो मैं ये आशा रखती हूँ वर्षा का बच्चे लोग भी ओलंपिक में जाएंगे, महाराष्ट्र जिसी तरीका से, और हमारी रिदमिक जिम्नास्टिक्स जिस तरीके से अपने जजेस है, अच्छे अच्छे जजेस है, इधर बैठी हुई है, हंस रहे हैं, अच्छे अच्छे हमारी जिम्नास्टिक रिदमिक जिम्नास्टिक जजेस है, अच्छा कोच है, तो आए जाएंगे। इसके बाद रिदमिक भी हमारी ओलंपिक में जाएंगे, इसी आशा मैं रखती हूँ। थैंक यू मेरी मैम। आशा है तुम लोगों से, और थैंक इसमें यू। कोई भी सपोर्ट, कोई भी मेरे को जरूरत पड़े, आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू सो मच मैम। दीदी के लिए कुछ नहीं, आप लोगों को जरूरत पड़ेगा फिर भी। नहीं, आप लोग वेरी एक्सपर्ट हो, मैं रिदमी में तो बिल्कुल जीरो हूँ, फिर भी तो मेरा आशा है कि हमारे रिदमिक भी आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे रिदमिक की जजेस इंटरनेशनल लेवल पे जजिंग कर रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हमारा किया है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक तक तो पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी, यही आशा में मैं तो जीऊंगी। थैंक यू मैम। मैम, आपका प्रणति के साथ जब भी कोचिंग होता था तो हमें कुछ इसके बारे में बताइए, वो कैसे प्रैक्टिस करती थी, और आप क्या, हमने तो सुना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस कराते थे उसको। हाँ, कराते तो थे। प्रैक्टिस में तो दूसरा बात होता है, ट्रेनिंग अलग है। ट्रेनिंग के बाद जैसे उसका वो पेरेंट्स से दूर रहते थे, तो 8 साल 9 साल के बच्चे मेरे पास आया पेरेंट्स से दूर। मैं कभी सालों में एक बार भेजती हूँ तो 10 दिन के लिए, कुछ काम के लिए तो भेजती हूँ किसी के साथ, तो इतने जल्दी मैं भेजता नहीं हूँ। मैं जब ट्रेनिंग में थी तो तब मैं उसका टीचर, जब ट्रेनिंग से बाहर बाहर आए तो उसका पेरेंट्स और फ्रेंड्स की तरह बात करते थे। मैं उसके जीत भी माना बहुत, हाँ, बचपन से उसका कोई जरूरत मैंने पूरा किया, और एक पेरेंट्स होके उसको हमेशा गाइडेंस दिया, और एक कोच होके हमेशा ट्रेनिंग किया, स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग किया। बट आफ्टर दैट मैं कोच नहीं रहा अभी, और उसका पेरेंट्स बना था। आपको वो जब कंपटीशन खेलती थी तो आपको कैसे, आपका फीलिंग क्या होता था? हमने तो आपको बहुत टेंशन देखा है। आपको भी पता है,
बच्चे को नहीं पता, लेकिन मन ही मन तो टेंशन होते हैं। तुमको भी पता है वर्षा, तुम भी कोच हो, और तुमको भी टेंशन होता है जब रिदमिक जिम्नास्टिक्स करते हैं बच्चे, बहुत टेंशन होता है। और मैंने रशिया में भी देखा, जब जब हम गए थे याकुटिया, तब भी याकुतिया। देखा तुमको भी बहुत टेंशन करते थे आप। तो बच्चे को लेके थोड़ा बिजी, ये करना भूलना नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, भूलना नहीं, ये हाँ नहीं करना, वो नहीं करना। वो देखे तुम्हारे साथ भी हमारा एक इंटरनेशनल है, दोनों एक ही साथ किए थे बहुत साल हाँ। पहले, 2008 8 में। वीमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में लेडीज कोच बहुत कम है, और जो भी है ना उसमें भी ऐसे कोच बहुत ही कम है जो खुद जाके स्पॉटिंग करेंगे, हेल्प करेंगे, बच्चों को स्टार्ट देंगे। अनिवन बार को बच्चे ने अब स्टार्ट किया तो जाके पीछे से स्प्रिंगबोर्ड पीछे हटाना आसान बात नहीं है। ये लग रहा है छोटी सी चीज है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी फिट फॉर दोज थिंग्स ऑल्सो। सो तो मैडम तो मतलब रिटायर्ड होने के बाद भी तक मैडम को देख रहे हैं कि वो सब खुद करते हैं। हमेशा जब भी टीम जाती है तो एक लेडी कोच होती है तो दूसरा जेंट्स कोच भी होता है, पर ये कभी नहीं हुआ कि मैडम उसके ऊपर सब जिम्मेदारी छोड़ के खुद चेयर पे बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैडम उस बारे में आप कुछ बताओ कि आपने कैसे फील किया, मतलब आप एज अ लेडी होने से कभी डोमिनेंस हुआ आपको मेल कोचेस का, या आपको लग रहा है कि सभी मेल कोचेस का अच्छा ही ट्रीटमेंट रहा? नहीं, मेल कोचेस और मेल कोच तो छोड़ो, सब लोग सोचते हैं कि लेडी कुछ नहीं कर सकता, ये बात तो होते ही है। लेकिन हम कभी ऐसे आने ही नहीं दिया नजदीक, क्योंकि मैं जो प्रैक्टिस मेरे को कराना है मैं खुद ही करूँगी। मेरे को कराने का एक मतलब, हम जब खुद करते थे तब हमारे जो पास में सीनियर होते थे वो भी हेल्प करते थे हमको, तो हम भी कुछ जूनियर को हेल्प किया ड्यूरिंग, जब हम स्पोर्ट्स मतलब जिम्नास्ट थे उसी टाइम पे भी किया। 82 एशियन गेम्स में जो हुआ था उसी टाइम पे मैंने एनएस किया, तो हम लोगों को कभी कभी उनको ट्रेनिंग में हेल्प देना पड़ता था। जैसे हमारी वो क्लासेस होते थे जब कैंप चल रहा था, 82 एशियन गेम्स में जो कैंप चल रहा था 81 82 में हमने किया, तो उसी टाइम पे जो कैंप चलता था तो कई बार हम लोगों को मौका मिला कि हम जाके हमारे क्लास के थ्योरी क्लास और कुछ क्लासेस मतलब जिम्नास्टिक्स क्लासेस जो है थ्योरी छोड़ के हम उधर प्रैक्टिकल में उन लोगों को हेल्प किया। उसमें भी काफी हमको सीखना मतलब सीख पाए हम। और इसके बाद जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस अपने के मैं ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरा अभी तक है कि डबल मैं करा सकती हूँ बच्चे को, और ऊपर उठ के उनको जैन सर्कल भी मैं करा सकती हूँ। मैं और क्या करना है, अभी मैं तो हेल्प देना इजी है। जैन से हम पीछे नहीं है, ये तो हमको सोचना चाहिए। अंदर जो कोच के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। मेरे को कॉन्फिडेंस के ऊपर वाला के इच्छा में कभी कम हुआ नहीं, और मैं खुद ही हेल्प देते रहे। That was very great. First, let Kshipra ask. Kshipra and Akshada, I think they want to ask some questions. And after that, we'll take the questions from the girls. Yes. इसको पहचाना आपने क्षिप्रा को? बच्ची थी, हाँ, याकुतिया में इसको लेके गए थे हम। छोटी सी बच्ची, अभी बड़े हो गई, और अभी शादी भी हो गई। कभी कभी कॉफी पिलाने के लिए आ जाती थी रात को। है ना? Hello ma'am, thank you so much for joining us today. आपको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। सब पूरे वर्ल्ड में ही पेंडेमिक के वजह से प्रॉब्लम चल रहा है, सारे गेम्स के लोगों के प्रैक्टिस पे इफेक्ट हो रहा है उसका। और फिर भी हमारे क्लास की जो छोटी छोटी बच्चे हैं, ऑलमोस्ट अभी 2 साल हो गए विदाउट एनी practicing at their homes. अभी ऐसा हमारे पास कोई सेंटर भी नहीं है जहाँ पे सारी लड़कियां, मतलब हॉस्टल जैसा कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो सारी लड़कियां अपने अपने घर पे ही जाती है, फिर प्रैक्टिस करने के लिए नॉर्मल सेंटर्स पे आती है। तो अभी फिलहाल सब लोगों को घर पे ही प्रैक्टिस करना पड़ रहा है। और आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द कोचेस एंड कि सब लोग घर से प्रैक्टिस ले रहे हैं रेगुलरली, और बच्चे भी सिंसियरली ज्वाइन कर रहे हैं और अपना प्रैक्टिस अपना फिटनेस रख रहे हैं ठीक से। तो पर अभी इतना ये टाइम बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, थोड़े ऐसे लगता है कि अभी चालू हो जाएगा सेंटर और वापस ऑफलाइन प्रैक्टिस चालू हो जाएगी।
पर फिर भी अभी तक वो टाइम आ नहीं रहा है। तो आप उसके बारे में अगर कुछ लड़कियों हमारी लड़कियों को कह सकते हैं तो कि कैसे वो ये पैंडेमिक में अपना फिजिकल फिटनेस के साथ गेम में मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, उसके बारे में आप अगर कुछ कह पाए अपनी लड़कियों को तो प्लीज। एक्चुअली अभी जो हॉस्टल की बात भी बोल रहे हैं, हॉस्टल भी बंद है टोटली। हॉस्टल Okay. जहाँ पे है कहीं पे भी हॉस्टल भी चालू नहीं है, कहीं पे भी ऐसे ही है कि सभी मतलब इंडिया क्यों सभी जगह पे शायद ऐसे ही चल रहा है। और इंडिया में भी तो सारे हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल जितने हैं सारे बंद है। तो रिदमिक जिम्नास्टिक्स के लिए थोड़ा बहुत जो फिटनेस रूम में कोई जगह हो तो आप लोगों ने थोड़ा सा उनको टेक्निक बोल के दूर से कराने की कोशिश कर रहे हो, तो उनमें से कुछ आइडिया उनको देते हो, लेकिन फ्रंट में जाके सामने जाके जो आइडिया दे उसमें थोड़ा सा तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। लेकिन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में आइडिया देने में कोई जगह ही नहीं है। दूर से आइडिया देंगे क्या करना है, थोड़ा बहुत ही कर सकते हैं, फिटनेस ही कर सकते हैं, डबल तो नहीं कर सकते। नहीं अगर उनके पास घर में एक बार भी लगा दो खुद नहीं कर सकता, अगर फ्लोर भी हो तो कुछ और ऐसे मिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो तो बहुत ज्यादा मतलब सफरर हो रहा है। और ये बच्चे लोग जो है फिटनेस करते रहे और आप लोगों को फॉलो जो टीचर है उसको फॉलो करके अपने टेक्निक अपने इसमें अगर कोई जगह छाप पे है कुछ भी है तो रिबन और सब कुछ लेके थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कम होता ही नहीं। बच्चे को तुम सामने ही खड़े होके अपने बच्चे को जैसे हम बोलेंगे, अगर उसको नहीं होता तो उसको समझा सकते हैं, तो इतना नहीं कर सकते, उसको हाथ के पकड़ा सकते हैं। रिदमिक जिम्नास्टिक की बात ही कर रही हूँ जो जिसमें अपने रिबन ऐसे पकड़ना है, बच्चे लोगों को सिखाना पड़ता है कि उसका हैंडलिंग कैसे है। तो हैंडलिंग सिखाने के लिए सामने रहना जरूरी है। बच्चे इतना समझते नहीं कि यार मैं ठीक बोल रही हूँ ना, हैंडलिंग भी तो करना है तो अपरेटस को। तो आप जब सामने रह के करते हो इतना अच्छा होता है। वो दूर में आप लोग सिखाते हो, हम लोग जो सिखाते हैं उसको मतलब शायद हमेशा समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे को थोड़ा बहुत समझ में आता है। अभी देखा जाएगा ऑनलाइन कंपटीशन में वही फर्स्ट आ गया, लेकिन ये बात नहीं कि उसमें दुख पाने की कोई जगह नहीं है। चलो सिचुएशन एक दिन ठीक होगा, सुशी की मतलब इसमें हम हैं कि तब हमारी पूरा ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तभी तब तक जितना सा होते हैं उसको जैसे पढ़ने में भी एजुकेशन में भी इतना अच्छा हो नहीं रहा, जैसे गेम्स में भी नहीं हो रहा है। लेकिन उनको ये रहना चाहिए कि गेम्स के अंदर उसका लव रखने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है, उसका प्यार होना चाहिए, उसका लव होना चाहिए, उसी की तरफ उसको मतलब बिजी रखना चाहिए कि नहीं मेरे को ये करना है। ये जो कंपटीशन है आज आप लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो ये बहुत बढ़िया चीज कर रहे हो, इसीलिए कि बच्चे लोगों का ना उत्साह मिलेगा। चलो आज हमको मतलब कंपटीशन में जिसको प्राइज मिल गया, नहीं तो आप लोग देख रहे हो उनका फुल कॉम्बिनेशन, कुछ तो ऑनलाइन में बनाया कुछ खुद ये के बनाया। तो जब देखेगा जजेस बैठे हुए हैं उनके सामने कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा तो मतलब खुशी मिलेगा। तो बच्चे को थोड़ा सा गेम्स की तरफ खींच के रखने के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेशनल प्राइज होल्डर भी नहीं बना सकते हम, ना ही ओलंपियन बना सकते, ना ही कुछ बना सकते, लेकिन बच्चों को इसकी तरफ हम रख सकते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ कोशिश। Akshay, you want to ask? मीना मैम, फर्स्टली ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और प्रणति को। अक्षता मेरा प्रणति से बात होता रहता है, अच्छा बहुत एक्साइटेड साउंड कर रही थी और टेंस्ड भी थी कि इतना लॉकडाउन हो रहा था 1 साल 1.5 साल एंड सडनली शी इज एक्साइटेड टोक्यो। तो आपका प्रेपरेशन अभी कैसा चल रहा है मेंटली एंड फिजिकली? थोड़ा बहुत तो चल ही रहा है ठीक ठाक मेंटली भी है इतना ही। देखा जाए कि कंपटीशन में क्या होता है, और कंपटीशन होता है तो क्या मतलब क्या कर सकते हैं, अभी चल रहा है ऐसे ही। Sadicha, now girls wants to ask something. Yes. Yes. I'm Arunima Mathur. Okay. So now I'm in 10th standard, and if I want to choose gymnastics as my career,
So how can I balance studies and gymnastics at the same time? Your coach is here, sitting here, Barsha ma'am, and all those. They trained you every day, I think. How many days you train them? 7 days or 6 days? 6 days. 6 days. Average 6 days. And you practice it. You can. Yes. आप अगर प्रैक्टिस करोगे और मैडम को फॉलो करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेंटली उनसे पूछोगे तो फिर आपको तो अच्छा कर लोगे. आई होप. Thank you. 10th स्टैंडर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता. आपका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए. फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज डेली करना चाहिए. और जब मैडम होते भी नहीं है आपके सामने स्क्रीन में तब भी इधर फ्लेक्सिबिलिटी करो. हम बचपन में खुद ही खुद करते रहते थे. जब घर में भी बैठ गया पढ़ने के लिए तो थोड़ा लगता कि लेग स्प्लिट करके बैठूं. तो इसी तरीके से आप भी बैठो, आप भी करो. अपने ऊपर भरोसा रखो. ऑलवेज अपने ऊपर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ. तो आप कर ही सकते हो. अगर आपको ये होगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ तो नहीं कर सकते हो. देखो बेटा, आप जी गेम्स बोलो और पढ़ाई बोलो, हार जीत तो होता है. अगर कम नंबर भी मिलता है, कई बार लोग पढ़ाई में भी फेल हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर वो पढ़ते हैं. तो गेम भी ऐसे है कि तुम एक बार मतलब नहीं जीत पाए तो तुमको ट्राई होना चाहिए कि और करो और जीतो. जितना है बस. गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम अदिति दांडेकर है. सबसे पहले तो आपको और प्रणति दी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस ओलंपिक्स के लिए. और मुझे आपसे पूछना था कि आपने अभी इतने साल से इतने सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स जज किए हैं, कोच किए हैं, तो आपका सबसे फेवरेट या फिर आपका सबसे यादगार कंपटीशन या उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करें तो. हर एक कंपटीशन जो होता है ना इंटरनेशनल, तो वो यादगारी होता है कि आगे बढ़ने का और एक रास्ता खुलता है. एक कंपटीशन में गया, उसी टाइम पे सब जूनियर में जब भी कंपटीशन हुआ था याकुटिया में, तो उसी टाइम पे प्रणति बीम पे 5th हुई थी और वॉल्टिंग में 4th हुई थी. तो एक रास्ता आगे बढ़ा कि हाँ कर सकते हैं, वो उसको और भी ट्रेनिंग करना. नेक्स्ट कंपटीशन जब आए एशियन गेम्स आए 2014 में, जब मैं भी थी उसके साथ, उसी टाइम पे भी थी, तो ऑलराउंड में वो उसको चांस मिला कि ऑलराउंड खेलने के लिए. फर्स्ट कंपटीशन के बाद भी क्वालिफाइड हुआ. 2 लड़की क्वालिफाइड हुआ था, जो है दीपा एंड प्रणति नायक. तो वो भी और एक चांस एक है कि हाँ भाई ये यादगार जगह है, इसमें उसको और भी आगे बढ़ना था. नेक्स्ट वॉल्टिंग में वो नेक्स्ट कंपटीशन में आया कि वो क्वालिफाइड हुआ. तो एक एक जो चीज होता है ना, और लास्ट में जाके जो यादगार कंपटीशन है जहाँ पे हमको मेडल मिला है एशियन चैंपियनशिप में, उधर तो मैम रो ही पड़ी हम कि भाई मेडल आया. बिलीव नहीं कर पा रही थी उसी टाइम पे, तो रोया, दोनों मिलके रोया. फील्ड में रो रही थी हम दोनों कि मेडल आ गया. लोग दुख में रोते हैं नहीं आया, लेकिन आने के बाद हम जो रोया ना, वो तो यादगार ही है ना. हम बहुत रो रहे थे दोनों, तो वही यादगार है. थैंक यू सो मच मैम. मैम प्रणति दी, दीपा दी, अरुणा दी, ये सब तो हमारे लिए अभी बहुत बड़े स्टार्स बन गए हैं. तो हम सब प्रे कर रहे हैं कि प्रणति दी को भी ओलंपिक में बहुत अच्छा रैंकिंग मिल जाए. ऑल द बेस्ट. और हम भी प्रे कर रहे हैं कि तुम लोग बहुत आगे बढ़ो उसी जगह पे. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. रास्ता फॉलो करो, मेहनत करो. अभी मेहनत जितना सा कर सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग में करो, इसके आगे बढ़ो, अपने आप को फिट रखो. ठीक है, अब भी Yes. आपके लिए भी हम लोग गर्व करेंगे कि हाँ थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. भाई, हम लोग भी प्राउड होंगे आप लोग के लिए. ऐसे ही करो. Thank you. मैम एक क्वेश्चन है, आपने प्रणीति दाई को ट्रेन करने के लिए कैसे किया? मतलब अभी पैंडेमिक चालू है तो आप उनको आर्टिस्टिक के लिए कैसे ट्रेन कर रहे थे? बहुत मुश्किल है, इतने दिन उसका प्रैक्टिस ही नहीं हुआ. मतलब घर में ही वो मतलब फिटनेस ही किया आप लोगों जैसा. तो मुश्किल तो अभी चल ही रहा है ना. आप लोग रिदमिक में इतना प्रॉब्लम होता है तो आर्टिस्टिक में बहुत प्रॉब्लम है.
अभी मैं और मेरे जैसे बाकी के मेरे साथ जो है वो हमने अभी अभी कोचिंग शुरू किया है, 5-6 इयर्स हो गए हैं। वी आर वर्किंग एज जूनियर कोचेस। सो हमारा भी एम है कि हमारे भी बच्चे बड़े बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स खेले, ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करे। तो एज अ कोच आप तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हमारे लिए कि आपकी लड़कियां भी अब ओलंपिक्स खेल रही है। तो हमारा भी वो टारगेट अचीव करने के लिए आप क्या हमें एडवाइस कर सके, हम क्या करें कि हम हमारी लड़कियों को बेटर कर सके ट्रेन? अब एक ही है कि आपको आपको खुद को भी मेहनत करना पड़ेगा। मतलब एक ट्रेन करने के लिए खुद को स्टडी भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है कि उसके ऊपर उसको अभी तो बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब जो 2008 में तो नहीं थे, 9 में नहीं थे, आज आप लोग फॉलो कर सकते हो वीडियो। जो अभी ज़माना आ गया, वीडियो फॉलो कर सकते हो और दूसरा कंट्री का, और उसके तरह तो आप मेहनत करो। कोच को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तभी एक प्लेयर बनते हैं। प्लेयर को मेहनत कराना पड़ता है, लेकिन वो टेक्निकली मेहनत करना पड़ता है जिसमें वो आगे बढ़ सके। विदाउट मेहनत, कोच की मेहनत के बगैर एक प्लेयर नहीं बन सकता। तो आप लोग जो इच्छा है उसमें मैं कर रही हूँ कि आप आगे बढ़ा सकते हो, और होपफुल है कि रिद्धि एक दिन जाएगा आप लोगों की एनर्जी में, ओलंपिक ओलंपिक जरूर जाएगा, क्यों ना ये एनर्जी आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन एक दिनों में बनता नहीं है, 16-17 साल लग जाता है एक प्लेयर को बनाने के लिए, उसका साइकोलॉजी सोचने के लिए, उसको ट्रीट करने का तरीका से। और आप हर एक के ऊपर हम नजर देते हैं, लेकिन स्पेशल के ऊपर तो ज्यादा नजर होता है ना। वो करो, उनके लिए स्टडी करो, उनको फर्स्ट उनका साइकोलॉजी समझो। बच्चे का साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। उनके हर बातों में उनकी जो प्रॉब्लम है, जैसे उसकी चोट है, कहीं पे दिखाना, कहीं कराना, क्या कैसे उसको कर सकते हैं। उसको अपने भी कोई पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, वो भी देखना पड़ता है। उसको फैमिली प्रॉब्लम अगर आ गया तो बच्चे का ट्रेनिंग खराब होता है। तो वो भी थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकली करना पड़ता है। जैसे आपको मैं एक स्टोरी बना सुनाता हूँ, ये रियल है। जैसे हमारी 2018 में 17 में ऐसे हुआ था कि उसका ना पूरा प्रणति का कैंप पे रहते हुए पूरा लेग्स में पेन, बैक में पेन। तो हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वो तो थे हमारे साथ, लेकिन और भी थे उधर। लेकिन मेरे को एक चांस में, मतलब किसी ने बताया कि ये है एक फिजियोथेरेपिस्ट जो ट्रीट कर सकते हैं। तो 8 बजे तक हमारा, रात को इवनिंग 8 o'clock तक हमारी ट्रेनिंग खत्म होता था। तो उसी टाइम पे हमने गाड़ी अरेंज करके वो उसको लेके नोएडा चले गए, उसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। 11 बज जाता था, कहीं भी 12 बज जाता था। उधर से फिर वापस आके खाना रखे हुए होते। कई लोग हम लोग को उधर, मतलब लोकल लोग भी कई 2-1 दिन हेल्प किया, नहीं किया तो कोई नहीं, हम हायर करके गाड़ी लेके चले जाते। 11 बजे तक हम वापस आए, 11:30 बजे तक उसको पूरा मतलब फिजियोथेरेपी करा के रिलैक्स करा के आए। आने के बाद खाना खा के दोनों सोए। ऐसे ही हमारी मतलब ये था, ये नहीं कि हम ट्रेनिंग करा के छोड़ दिया, ऐसे ही था। उसका स्टडी के लिए भी उसको स्कूल मिस हो रहा है, तो वो पास होना बहुत मुश्किल है। तो उनको मतलब ओपन स्कूल से हमने पढ़ाया, और संडे वो होता है क्लासेस, मैंने जाके उनको दे के आते थे कई बार। पहले पहले तो उसको छोड़ के आते थे, प्राइवेट ट्यूशन भी रखे थे जिनके पास हम जाके उसको मतलब दे के आए। इसके बाद भी उसको पता करते थे वो गया क्या नहीं टाइम पे। सैटरडे संडे में उसको भी फोन से कई बार हम खुद ही लेके चले जाते थे। तो स्टडी नहीं करने से तो उसको जॉब भी नहीं मिलेगा ना, जॉब मिलना भी तो जरूरी है। रेलवे में तो 10th पास होना जरूरी है, तो वो भी करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो एक बच्चों को जब आप तैयार करोगे, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे और भी एक स्टूडेंट है, इसको तो मैं पूरा ही करती थी कि अपना इसका पेरेंट्स है। तो मंदिरा हजरत चौधरी, आप लोग जानते होंगे, उसका हाँ। मतलब चोट लग गया, ऑपरेशन होगा पैर में। तो उस दिन हमारी पिकनिक था, मैं पिकनिक मतलब ऑफिस पिकनिक छोड़ के चले गए, मैं आ नहीं सकते। और वो बच्ची मेरे लिए वेट करते रहे कि जब तक मैडम नहीं होगा आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, और मम्मी पापा को बोला हटो, तो उसका हुआ। थोड़ा सा मतलब ये था, मैं उधर ही थी। इसके बाद जब ऑपरेशन होने के बाद क्या होता है
कि बच्चे बुलाते हैं कि कोई घर की कोई जाए उसको, तो मैंने उसका मम्मी को भेजा, उसको भगा दिया। वो मम्मी को भगा दिया, तुम भागो मैडम को भेजो। तो ये होता है बच्चे के साथ हमारी जो रिलेशंस है ना, से तभी तो आगे बढ़ता है। ये भी तो इंटरनेशनल खेला है मेरे बेटी, ये बच्चे, ये तो एशियन गेम्स खेला है, चिल्ड्रन एशियड में भी फर्स्ट उसका था। इसीलिए ये बात जो है ना, बच्चे के साथ आप लगे रहो, हर एक चीज फॉलो करो, तभी आप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हो। नॉट ओनली ट्रेनिंग, उसका पर्सनल लाइफ साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, मैं ये समझती हूँ। Right. Thank you so much, ma'am. Thank you. My name is Ava Irani. My question is that I just joined PRGA and I want to know about how many hours I have to practice to become good at my gymnastics. Yes, now you are the beginners. 3 hours is okay, but after that it's a 5 hours, 6 hours, morning and evening both mila ke. Then you can do it. Good. You can become a good gymnast. Okay. Okay, okay. And also follow your teacher, your coach. You believe your coach. Yes, miss. Okay. Yes. And you share your problem with your coach. Okay. Yes, ma'am. Okay. Hello, ma'am. My name is Disha. I wish you, first of all, I want to wish you congratulations and all the best for Olympics. आप जानते ही होंगे कि डाइट एक स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए। तो आप क्या टिप्स दे सकते हो कोचेस को, पेरेंट्स को और जिमनास्ट को कि डाइट पे कैसे ध्यान दे सकते हैं और कैसे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको जंक फूड खाने का बहुत क्रेविंग रहता है, तो उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं डाइट फॉलो करने के लिए? डाइट फॉलो करने के लिए बच्चों को कैसे कर सकते हैं? तुम तो बच्चे हो, तुम खुद ही सोचो कि तुमको प्यार किससे है, ये जंक फूड से है कि जिम्नास्टिक्स से है? अगर जिम्नास्टिक्स से है तो आप जिम्नास्टिक्स के लिए ये जो थोड़ा बहुत चीज तो छोड़ ही सकते हो, कभी कभी खा सकते हो, कभी कभी, बट रेगुलर बेसिस से अगर खाओगे तो बहुत मुश्किल है, आप तो प्लेयर नहीं बन सकते। लेकिन कभी कभार महीने में एक बार तो खा ही सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चेंज योर हैबिट्स। ओके। और पेरेंट्स को तुम सिखाओ। पेरेंट्स क्यों, तुम बोलो कि नहीं खाएंगे बाबा, तो पेरेंट्स बोलने का तुमको लाभ किससे है, जिम्नास्टिक्स से कि फूड से? वो अच्छे अच्छे पिज्जा, क्या पुलाव, क्या बिरयानी, किससे प्यार ज्यादा है? जिम्नास्टिक्स है ना। जिम्नास्टिक्स तो कभी कभी वो सारे खा सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस से मत खाना, ठीक है? एज अ पेरेंट उनका क्या रोल होना चाहिए कि अपने बेटी के स्पोर्ट्स करियर के ग्रोथ और सक्सेस के इसके लिए एज अ पेरेंट व्हाट देयर रोल शुड बी? फर्स्ट ये है पेरेंट्स को ना, हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को प्राइज मिलना ही चाहिए, उसको अच्छा करना ही चाहिए। गलत भी, मतलब पहले कई बार होता है कि अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये नहीं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, हाँ तुम नहीं कर सकते हो, देखो वो कैसे है, ये बात तो बिल्कुल कहना ही नहीं चाहिए। बेटा वो कर रहा है अच्छा तो कोई बात नहीं, तुम भी अच्छा करो, तुम अच्छा बन सकते हो। ये जो मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेट बच्चों को करते हैं, वही बच्चे आगे बढ़ते हैं। जिस बच्चे को बोला जाता है तुमसे कुछ नहीं होगा, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तो उसका अंदर जो होता है ना, वो नहीं होता, चलो छोड़ते हैं, मेरे मम्मी तो बोल रहा है, मेरे पापा ही तो बोल रहा है, मेरे से कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। बट नहीं, हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, हारने से भी मोटिवेट करना चाहिए। जो आज बच्चे हारा कल जीतेंगे, तो उसको बोलना चाहिए कोई बात नहीं, आप हार गए हो आज तो जीतोगे कल जीतने के लिए तैयारी करो, कल से ही शुरू हो जाए। ये नहीं कि तुम तो हार के बच्चे आ सकते घर में ही तो आएगा, तो उनके बाद बोलेगा यार ठीक है तुमको कुछ नहीं आता, इतना पैसा खर्च किया, इतने दूर जाते हो, इतना मेहनत करते हो, तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। ये बात
कभी भी कोई पेरेंट्स को नहीं कहना चाहिए, तभी उसके बच्चे कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। बच्चे को हारने से भी मोटिवेट करना चाहिए, हर एक इसमें देखना चाहिए जी उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है। एक पेरेंट्स का तो ये है कि बच्चे के प्रॉब्लम देखना जरूरी है, जैसे एक कोच को होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है वो फाइंड आउट करना, साइकोलॉजी देखना कि उसका घर आज इसने कर नहीं पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहा, उसका प्रॉब्लम क्या है, घर में प्रॉब्लम है, स्कूल में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आके वो ट्रेनिंग में उसका इफेक्ट पड़ सकता है। घर में कुछ प्रॉब्लम है, पापा मम्मी का झगड़ा हो सकता है, और आस पड़ोस में कोई शादी है उस जा नहीं पा रहा है, इसके लिए भी उसका मन खराब होता है, उसको आके परफॉर्मेंस हो नहीं रहा। तो हो सकता है इसको भी हम लोगों ने कई बार उनको उसी तरीके से ट्रेनिंग करा था जिसमें मतलब उसको चोट भी ना लगे लेकिन थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हो जाए फिर जाओ, वो साइकोलॉजी भी देखना है। तो पेरेंट्स को भी ये फॉलो करना है कि बच्चे फील्ड से आके भी होता है कई बार मायूस हो जाता है, दुख होता है उसको नहीं कर पाए, तो उसको चेयर अप करना चाहिए, हार के आने से भी चेयर अप करना चाहिए नेक्स्ट टाइम, तो वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स हमेशा बच्चे के साथ देना चाहिए, ठीक है। सो निष्का हमारी अपकमिंग सीनियर जिमनास्ट है मैम। सो निष्का का क्वेश्चन ये था कि वो जो ऑन क्या बोलते ऑन कारपेट या ऑन द मैट जो टेंशन या नर्वसनेस होता है एक प्लेयर को सेट के पहले या उसके परफॉर्मेंस के पहले, तो उससे वो कैसे डील करे ताकि उसका वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट ना पड़े। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटल ट्रेनिंग का, कई बार बच्चे बीमार होते हैं फिर भी अच्छे परफॉर्मेंस देके आते हैं, तो उसको उधर जाने के पहले ये सोचना चाहिए कि मैं करूंगी, मेरे को फॉल नहीं करना चाहिए। अगर वो अपकमिंग जिम्नास्ट है तो उसको आंख बंद करके अपने जो परफॉर्मेंस है उसको करना चाहिए, आंख बंद करके, मतलब फील्ड में नहीं अपने मन में करना चाहिए, और उसको उसी टाइम पे नहीं सोचना चाहिए कि मैं गिर गया। ये है साइकोलॉजी, अगेन रिपीट करो, और जहाँ वो तुम ये सोचो कि मैंने फॉल नहीं किया, और तुम सोचने के टाइम भी फॉल हो सकता है कि मेरा रिबन गिर गया, मेरे को ये रोल नहीं हुआ, तो उसी टाइम पे स्टॉप करके अगेन उसको रिपीट करो क्यों नहीं हुआ, मन में इसको कई बार करना जरूरी है। परफॉर्मेंस से पहले भी ये मेंटल ट्रेनिंग एक प्लेयर को करना चाहिए कि मैं मेरा ये है, ये कर रही हूँ, आंख बंद करके आस पड़ोस कहीं पे है वो सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए मैं गिरा नहीं, तभी उसको टेंशन नहीं, मैं हूँ, मैं अकेले हूँ, मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ और कोई नहीं है, नोबडी एल्स, मैं हूँ, मेरे ये है कि फील्ड है, मेरे फ्लोर है, मैं हूँ और कोई नहीं है, नो जज नथिंग, और अपने गेम्स जो परफॉर्मेंस है अपने आप में करके फिर जाओ, फिर देखना। हमेशा हमेशा एक प्लेयर, हम आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स की प्लेयर को हमेशा बोलते हैं, मेरे प्लेयर को, कि कंपटीशन से पहले ऐसे करना, वो नहीं कि आंख बंद करके अब सोचो अपने गेम हर दिन को करो और सोचो कि कोई नहीं है, तो ये उसके लिए है। एब्सोल्युटली ट्रू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक क्वेश्चंस हम लेते रहेंगे तो और 2 घंटे चले जाएंगे, क्योंकि हाँ, बच्चों को अभी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करना, और मैंने पहले ही कहा कि हमें एक सेशन में होगा नहीं ये खत्म, तो वी वुड लाइक टू इनवाइट यू अगेन एंड वी विल डू वन मोर इंटरव्यू सेशन विथ यू मैम। एंड ये कंपटीशन जो हमने कराया है तो थोड़ा सा छोटा अटेम्प्ट था, कंपटीशन करा के देखना बच्चों को कैसे लग रहा है, कितना ऑर्गेनाइज हम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे, बट डेफिनेटली आपकी ब्लेसिंग्स हमें बहुत काम आएगी मैम। एंड आई प्रॉमिस कि सारे कोचेस मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जो जूनियर कोचेस है, तो वो अपना 100% दे के ट्रेनिंग करेंगे इसके भी आगे, और वी विल ट्राई टू डू बेटर एवरी ईयर। जो भी नए बच्चे अभी ज्वाइन करके कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं वो भी उनकी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। पेंडेमिक में भी 2 साल बिना बोर होके ऑनलाइन ट्रेनिंग में लगे हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। Yes. So we again wish you and your student Praniti all the best for your Olympic appearance, and thank you once again for coming and talking to us. It was a great time. और सच में बच्चों के व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं दैट ताई वी वांट टू आस्क, सो आई विल डेफिनेटली प्लान वन मोर सेशन संडे मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के भी ये आ रहा है कि संडे को रखो आप, तो हम भी थोड़ा सुन सकते हैं मैडम से। तो
आपको और एक बार हमारे साथ बात करने के लिए आना पड़ेगा। जी, मैं तो हमेशा हूँ आप लोगों के साथ। इंडियन Thank you. जिम्नास्टिक्स को आगे बढ़ाने के लिए जितना भी मेरे को हो सके मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। मेरा लाभ फर्स्ट लाभ है जिम्नास्टिक्स, और ये चीज मैं तो सोते जागते जिम्नास्टिक्स में रहती हूँ। कई लोग बोलते हैं हमारे घर में कि मैं मरने के टाइम भी जिम्नास्टिक्स करूंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा हूँ, और आप लोगों Thank का you. प्यार मैं भूल ही नहीं सकते। आप लोगों ने जो प्यार से मेरे को बुलाया, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। Thank you so Thank you so much, ma'am. So can we show them Pranati's vault video? Why not? Why Yes. not? Yes, I'm. Yes. मैम पूरे इंडिया भर के रिदमिक जिम्नास्टिक फ्रेटर्निटी से आपको और प्रणति को ऑल द बेस्ट। Thank you, thank you. Thank you Yeah. so much, ma'am, for joining today. Thank you, Mangla sir, for coming today. Thank you all of you. It's a nice program, arranged very nicely, and is all international, the top gymnast in the rhythmic. यहाँ कोई छोटा जिम्नास्ट नहीं है, सभी इंटरनेशनल्स हैं, कोचेस भी इंटरनेशनल्स हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे हैं आप लोगों ने, और अच्छे क्वेश्चन थे। मेन थिंग है, you have to work hard, you have to fix your goal, and you definitely will achieve them. There is no excuse for anything कि मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ, मेरा स्कूल था, मेरा कुछ भी था. There is no excuse for that. You have to work hard, and you can, along with the study, you can go. If you study your daily work, you complete daily, I'm sure that you will equally do much better than your sports in the studies. और मेरी निगाह में ऐसे कम ही लोग आए हैं, मैंने बहुत जगह देखा है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं वो स्टडी में भी अच्छे होते हैं. आप अपने महाराष्ट्र में देख लीजिए, मैक्सिमम बॉयज एंड गर्ल्स हैव डन very good achievements in the studies also. तो that is a different thing. आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है. You will do everything. And I know Minara since 81 when she was in the course at Patiala. और एक चीज मैंने नोट की है, बंगाल में मैंने 16 साल काम किया है और यहाँ मेरे को 25 साल से ज्यादा हो गए. दोनों में एक ही सिमिलरिटी है कि people work very hard even in the small places. आपके पास जगह नहीं है लेकिन आप लगे हुए हैं. I have watched in every district of Maharashtra and every district of West Bengal. छोटे छोटे गांवों में मैंने देखा है कि 20-25 फुट की जगह है, लोग वहां से चैंपियन निकल रहे हैं. मैंने भी बंगाल में काम किया है, बाजार व्यायाम समिति में, जहां से शिखा बरुआ निकली है, एशियन 82 कैंप किया, वो जो खेली है वो छोटी सी जगह में ही प्रैक्टिस करते थे. बाहर में वॉल्टिंग निकालना, अनइवन तक निकाल के लगाते थे वहां पे. तो that is only the hard work everybody is doing, and that culture I have seen in Maharashtra also. सब लोग लगे रहते हैं. अभी आप जो बोल रहे हैं, यहाँ सभी चैंपियन जिम्नास्ट हैं, सभी इंटरनेशनल जिम्नास्ट हैं आरजी में. जितने भी यहाँ भी प्रवक्ता बोले हैं, वर्षा है, संजुताई है, सदिच्छा है, अक्षता है, शिप्रा है, आदिति है. आदिति तो करंट चैंपियन है, राधिका है, और भी दिशा निद्रे है, बहुत सारी हैं जो मेरी निगाह में अभी भी याद है मेरे को. I have seen their performance, how I have seen their practice during 2010 in CWG. I was attached with the camp. तो आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ये छोटे बच्चों को भी कोई नहीं पीछे छोड़ सकता है. They will definitely go up. And whatever Minara told today,
it will be very, very useful to every gymnast, the younger and bigger. आपको अपनी efforts बढ़ानी है, बस कुछ नहीं है. You fix your goal. मेरा ये है, ये idea है, मेरा ये goal है, and you will increase your efforts. Fail हो गए कोई बात नहीं. मेरे को एक इंसिडेंट याद है कि कोई एक नेशनल की बात है, जूनियर होगा, जहां मीना रवि थी, मैं भी था, प्रणति भी थी और रुचा देवेकर भी थी. Pranati fall down from the uneven bar and she missed the championship, if I remember. लेकिन ये नहीं है कि उसने वहां से हाथ छूट जाने के बाद और अनइवन में निकल जाने के बाद उसने मेहनत छोड़ दी है. उसने मेहनत की, उसके कोच ने मेहनत की, and she have shown you the path कि they see I can reach to the top of the world for the competition. तो हिम्मत मत छोड़ो, कोई भी है. छोटे बच्चों ने बहुतों ने क्वेश्चन किए हैं, बहुतों ने खाने के लिए क्वेश्चन किए हैं. आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो. और पेरेंट्स से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, their duty is only to bring the children to the center and take them back. They should never interfere in the matter of the coaches, what they are teaching, what not. बिल्कुल सही है. जबकि पेरेंट्स जो है ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं. ये नहीं होना चाहिए. आप पेरेंट्स को दूर रखो, अपने आप ही सब अच्छे हो जाएंगे. बच्चे कोई पीछे नहीं रहते. Every child is very good and they work hard on the instruction of the coaches. Okay, Yes, sir. thank you very much. Thank you very much. Yeah, thank you very much, sir. Thank you. Okay, girls, thank you for joining today. Good night, madam. Good night. Good night. Okay. Bye. Good night to all. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good night. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye. Bye.